ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਥ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो शुरू करते हैं दोस्तों ਅੱਜ ਦੀ क्लास शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੂ ਟੇਲਰਸ X and Y are paid a total rupees 550 rupees per week। ਕਿ ਦੋ ਟੇਲਰ ਨੇ, ਇੱਕ X ਹੈ ਇੱਕ Y ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ if X is paid 120% of the sum paid to Y, कि X ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 120% ਮਿਲਿਆ ਹੈ as compared to Y। तो इस तरीके ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, X ਨੂੰ ਅਗਰ 120% ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ Y ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, 100% ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ Y ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ as compared to Y X get 120%। तो X ਨੂੰ ਅਗਰ 120 ਮਿਲੇ ਤਾਂ Y ਨੂੰ 100 ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6:5, मतलब X ਤੇ Y ਨੂੰ 6:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 11 ਆਏਗਾ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 550 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਗੁਣਾ 50 ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ Y ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ Y paid per week। ਤਾਂ ਇਨਟੂ 50 ਕਰ ਦੇंगे, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ। आंसर कितना आ जाएगा साडे कोलो 250 रुपीज। तो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ है, अगला सवाल देखो जी। A pupil's marks wrongly entered as 83 instead of 63। एक पर्सन है भाई, उसदे 83 मार्क्स लिख दिते गए, गलती नाल लिखने सीगे 63। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय हाफ। होया कि देखो एक स्टूडेंट सीगा, उसदे नंबर लिख दिते 83 बट एक्चुअल दे विच उसदे नंबर कितने सीगे 63 ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹਾਫ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 63 ਬਟ ਰੋਂਗਲੀ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ हैं 83। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, 20 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 20 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਹਾਫ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਹਾਫ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ 20 ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 40। ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ 40 ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਹੋਣਗੇ। कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट लगाने की लोड़ नहीं, बेसिक कंसेप्ट नाल ही ये चीज़ां निकल सकदियां ने। ठीक, चलो दोस्तों अगले सवाल वाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है, ये अच्छा सवाल है। की लिखा हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है साडे कोलों, उसका जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया है वो कितना 264 मीटर स्क्वायर है। फिर उन्हें की कहता कि उसकी जिहड़ी वॉल्यूम है वो कितनी है 924। वॉल्यूम गिवन है 924। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਬਈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਐਚ, ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ तो कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया साडे कोलो कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इन्हां नूं रेशो दे विच लिखां तां किहदे बराबर हो जाणगे साडे कोलो। वॉल्यूम कितना 924 और कर्व सरफेस एरिया कितना साडे कोलो 264।
ये आ जाएगा ना। तो हम देखो एक ही सिलेंडर की गल हो रही है, तो हाइट दोनों की बराबर होएगी तो कट जाएगा, पाई नाल पाई कट्टिया जाऊगा, एक रेडियस नाल आर कट्टिया जाऊगा तो आर बचेगा। ठीक है, तो ये 2 जो इधर कट्टिया जाऊगा 132 नाल। तो बच्चे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े को 924/132, या फिर अगर इसमें तुम कैंसल आउट कर दो तो 7 नाल कैंसल होएगा। ठीक है, 32 7 कितना होंगे 124 होंगे, 224 होंगे। आई होप ये चीज थानू समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं होएगी। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट देखो जी, आर की वैल्यू तो 7 आ गई साढ़े को, तो आर की वैल्यू अगर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। बट हजे भी मैनू की चाहिए है, हाइट चाहिए है। तो हाइट कढ़ने लिए मैं की करूंगा, इस फॉर्मूले दे विच आर की वैल्यू पुट कर दूंगा। जिवें 2 पाई आर एच है ना, तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू एच मान लो, एक किहदे बराबर है जी 264 के, किहदे बराबर हो गया 264 के। तो इथों एच की वैल्यू भी निकल आऊगी, देखो 7 नाल 7 कटिया गया, ये 6 नाल पूरा कटिया जाऊगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो बच्चे इत्थे मैं क्या लिखता कि हाइट कितनी है साढ़े कोलों 6, हाइट कितनी है दोस्तों साढ़े कोलों 6 है। तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो रेशो कितनी बनूगी 7:3, रेशो की बन जाएगी 7:3 बन जाएगी। इस सवाल का उत्तर होएगा। मैंसुरेशन के जिन्ने भी सवाल होंगे ने ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ने, अगर तुहानू फॉर्मूला पता है तो तुसी आंसर इजीली कट लोगे, अगर फॉर्मूले पता ने तो आंसर इजीली कटे जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल वाल बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ी स्क्रीन के उत्ते है, की लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48। दो नंबर्स ने उन्होंने एलसीएम कितना है 48 है। उस तो बाद की है द नंबर आर इन रेशो 2:3, नंबर जेडे ने वो 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂकि देखो ये सवाल सोल्व करने की लोड़ नहीं है, ये इजीली निकल सकता है। किवें कि भाई देखो पहला नंबर अगर n1 है, दूजा मान लो अगर n2 है, तो n1 प्लस n2 ये जो दोनों नंबर ने ये रेशो दे विच सम कितना बन रहा है 5। तो रेशो दे विच अगर सम 5 है तो आंसर 5 का कोई मल्टीपल होगा, है ना, आंसर 5 का ही कोई मल्टीपल होगा। और 5 का मल्टीपल इको ही है इत्थे 40, 5 का मल्टीपल इको ही है जो कि है 40 है। बाकी करना किवें हुंदा देखो, इसनूं मैं अगर x मान लवां तो 2x ते 3x का एलसीएम कितना आऊगा 6x, एलसीएम कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। और एलसीएम कितना गिवन है सानू 48, तो भाई इत्थे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो 8 ना अगर मैं इत्थे मल्टीप्लाई कर दवां तो n1 की वैल्यू 16, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, सम करांगे तो 40 आ गया। इसे सवाल दे विच अगर पुछदा कि दसो HCF कितना होएगा, तो दोस्तों HCF की हुंदा है, ये वो नंबर है जिहदे नाल तुसीं मल्टीप्लाई कीता दोनों नंबर्स नूं रेशो तो वैल्यू तक आने लई, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 8। अगर HCF पूछ लेंदा तो कितना होना सीगा 8 होना सीगा। इस तरीके ना कर। ठीक है, अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है सानू इहदे विच कि भाई 36 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 36 मैन ने काम करते हैं 18 दिन दे विच। इन हाउ मैनी डेज विल 27 men कंप्लीट द सेम वर्क। दसो 27 मैन कितने दिन च काम खत्म करनगे। हुण ये सवाल है जी चेन रूल का। चेन रूल की कहता है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। जो वर्क सेम होवे तो आ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आ वाला फॉर्मूला साडा लग जाएगा। चलो करिए हुण M1 की गल करिए, 36 मैन ने काम करते हैं 18 दिन दे विच। सानू पुछया होया 27 मैन कितने दिन दे विच काम खत्म करने। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोल इत्थे 36 गुणा 18 बटे 27। तो 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27 और 12 3 36। आंसर आ जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा साडे कोल 24। ठीक है, आई होप इस सवाल भी तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आ गया होगा, इहदे विच तुहानू कोई भी डाउट नहीं होया होगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल वाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है साडा बोट्स एंड स्ट्रीम का। बड़ा अच्छा सवाल है। कि लिखा हुआ है कि अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। एक बोटमैन है वो की करता है अगेंस्ट द करंट चलता है 2 किलोमीटर, मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है 2 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे दे विच। मतलब ओदी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम की उसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। आई है ना।
फिर उन्हें की कहता एंड 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, मतलब 1 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम इन 10 मिनट्स। भाई 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ। ठीक है। सानू पूछा होया है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू गो 5 किलोमीटर इन द स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर का मतलब की होता है स्टिल वाटर। तो दोस्तों स्टिल वाटर दे विच बोट दी स्पीड किवें निकलदी है, अगर स्टिल वाटर दे विच मैं स्पीड वेखां तो स्पीड किवें आऊगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 + 2 डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। सानू पूछा होया कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा होया जी सानू, तो टाइम किवें निकलूगा जी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड है 4, आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आवर्स या फिर 1 आवर 15 मिनट्स, या फिर क्या हो जाएगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी जेड़ा है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज भी थानू वधिया तरीके नाल समझ आ गई होएगी। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं सानू कि इन what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea worth 60 rupees a kg and 65 rupees a kg so that selling at the mixture at 68.2 to a kg may gain 10%। हुण ये सवाल हैगा भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन दा, ठीक है। कि एक साडे कोल वैरायटी हैगी है टी दी, मान लो T1 है, कोस्ट कितना है जी 60, एक वैरायटी हैगी है साडे कोल T2, कोस्ट कितनी है 65। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ 68.2 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 110%, ਕਿਸ ਦਾ, ਸੀਪੀ ਦਾ। 110% ਆਫ ਸੀਪੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 68.2 ਦੇ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। इथों अगर असी सीपी की वैल्यू कटनी है किवें कटांगे, 68.2 अपॉन 110 इंटू 100, इदा निकलूगा ना, 0 नाल 0 कटिया गया तो 682/11, यानी कि अगर मैं सॉल्व करा तो 62 आएगा साडे कोल कोस्ट, 62 आएगा कोस्ट प्राइस। हुण हुंदा की है कि जदों भी एलिगेशन देखते हैं असी, अगर ऊपर कोस्ट प्राइस है तो सेंटर मिक्सचर भी की होना चाहिए, कोस्ट प्राइस होना चाहिए। ये आ गया 62, तो हुण की करांगे, क्रॉस डिफरेंस लवांगे इस तरीके नाल, कितना आ जाएगा इत्थे 3 दा और इत्थे कितना आ जाएगा 2 दा, मतलब किस रेशो दे विच मिक्स किया होएगा असी 3:2 दे विच, ठीक है। किस रेशो दे विच मिक्स किया होएगा इन्हां नूं 3:2 दे विच, ठीक। चलो भाई अगला सवाल देखो की कह रहे हैं कि 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द अनदर नंबर। 40% एक नंबर दा दूसरे नंबर दे 2/3 दे बराबर है, फिर की लिखा होया व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। दसो की रेशियो होएगा फर्स्ट नंबर ते सेकंड नंबर, ठीक है। जिवें करना किवें देखो, कहंदा पहला नंबर x मान लो तुसी, दूजा नंबर y मान लो, ठीक है। उन्हें की कहता कि भाई 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकंड नंबर, आया जी 2/3 ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 40% है ਇਹਨੂੰ अगर मैं सॉल्व करा तो कितना बनता है 40/100 या फिर 2/5, 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ y, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ अगर मैं y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ x/y ਹੋ ਜਾਏਗਾ और 5 ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, यानी कि 5/3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ x ਰੇਸ਼ੋ y ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5:3, ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ 5:3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जिहड़ा होएगा वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है वो कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी की कह रहे सानू कि सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज। सिमरन ने की किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। हुण देखो बिजनेस वाले सवाल आ गए ना,
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ 80,000 रुपए। ठीक है, 6 महीने बाद ज्वाइन किया। सानू अगे उन्हें की कहता कि 3 साल बाद प्रॉफिट होया 24,500। तो बच्चे 3 साल बाद का प्रॉफिट है ना, 3 साल बाद का प्रॉफिट है तो मतलब ये 36 महीने तक रहा होगा बिजनेस दे विच। 3 साल बाद 36 महीने, इसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया सीगा तो ये 30 महीने तक रहा होगा बिजनेस दे विच। हुण मैं मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैनू प्रॉफिट की रेशो चाहिए है। और प्रॉफिट की हुंदा साडे कोलों इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हुण जो कैंसल होंदा कैंसल कर लो, 4 जीरो नाल 4 जीरो कट्टिया गईयां, 6 पंजे 30, 6 छिका 36 हो गया और 5 नाल 5 कट्टिया गया। ठीक है, हुण 6 ते 8 बचे, इनू भी तुसीं 3:4 लिख सकते हो जी। सम करांगे तो 7 आऊगा। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है 2450 मल्टीप्लाई बाय 350 करके आऊगा। सॉरी डबल जीरो तो डबल जीरो लगा दो। सानू पूछा होया कि दसो सिमरन का प्रॉफिट शेयर कितना है, तो गुणा 3500 कर दो 3 नाल, आंसर आएगा 10,500 रुपये। आंसर आ जाएगा साडे कोल 10,500। आई होप ये चीज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होएगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलो भाई अगले सवाल वाल आते हैं जी। की लिखा होया है कि भाई सानू कहता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि A and B together can do a piece of work in 30 days। A plus B ਜਿਹੜਾ है दोनों काम करते ने 30 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। लिखता जी ਅਸੀਂ, फिर उन्हें की लिखता कि A having worked for 16 days, B finishes the remaining work alone in 44 days। कि A अगर 16 दिन काम करे, A अगर 16 दिन काम करे तो B बचा होया काम करता है जी 44 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ। B बचा होया काम करता है 44 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो सानू पूछा होया हाउ मैनी डेज शैल B फिनिश द होल वर्क अलोन। B कल्ला दसो कितने दिन ਦੇ ਵਿੱਚ काम करूगा। हुण देखो बड़ा सिंपल जिहा तरीका देखो, A ने 16 दिन तक काम किया और बचा होया काम B कर रहे हैं 44 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ B ਦੇ 44 डेज है ना, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 16 + 28। कि मतलब B जो है 16 दिन पहला काम करता, फिर 28 दिन फिर काम करता, टोटल 44 हो गए। और ये जो 16 दिन का काम है ना वो A नाल मर्ज कर दो। ठीक है, तो इत्थे असीं ये कह सकते हैं कि A + B ने 16 दिन काम किया और फिर B ने बचा हुआ काम किया है 28 दिन दे विच। गल तो इक्को ही है ना भाई, गल तो इक्को ही है। ठीक है, हुण अगे करना किवें है देखो, हुण A + B ने अगर 16 दिन काम कर लिया तो A + B का 30 दिन च काम करता है ना, तो 14 दिन का काम बचा। तो A + B का जिहड़ा 14 दिन का काम बचा हुआ है वो B कल्ला करता भाई 28 दिन दे विच। ठीक है, यानी कि टाइम का रेशो कितना आ गया 1:2। तो भाई अगर A + B का 14 दिन का काम B करता 28 दिन दे विच, डबल टाइम अगर लै रहा है तो टोटल 30 दिन का काम कितने दिन च करूगा, टोटल 30 दिन का काम करूगा है 60 दिन दे विच। कितने दिन च करेगा भाई 60 डेज दे विच। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा साडे कोलों 60 डेज। आंसर आ जाएगा साडे कोलों 60 डेज। तो ये सीगे जी साडे कोलों अज दी क्लास दे 10 सवाल जिहड़े असीं कीते ने अपना PS टेट दे पेपर दे लई। बाकी तुसीं अगर किसी होर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो उन्हां विच भी उस तरीके नाल ही आएगा। ठीक है, तो अज दी क्लास दोस्तों हुण मैं इत्थे खत्म करन लग्या। क्लास वधिया लगी है तो वीडियो नूं लाइक, चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। और बाकी अगर तुसीं पंजाब दे किसी होर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टैस्ट सीरीज साडे कोल सारियां अवेलेबल ने, तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। तो हुण मिलदे हां दोस्तों नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट MCQs दे नाल। तद तक लई थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।